Good morning to all of you present here. Okay, students, could you please tell me, have you planted some trees in your life? Yes, of course. Hope all of you have. Can you imagine we have an eminent personality amongst us who is planting trees for as many as 36 years and growing a dense forest, that too out of barren land. Isn't it amazing? Okay, firstly, I would like to welcome our Director Principal Madam, Jayashree Ma'am Churaria, our Honorable Chief Guest, Mr. Jadav Molai Pine, with the members along with him, Middle Section Coordinator, Mr. Sandeep Tiwari, Assistant Coordinator, Vandana Ma'am, Activity in Charge, Ms. Aparna Ma'am, teachers and my dear students. Today, I am profoundly delighted to take this opportunity to introduce the chief guest for the day, Mr. Jadav Molai Pine from Assam, better known as the Forest Man of India. Mr. Jadav Pine, a Padma Shri recipient in 2015, spent more than 30 years of his life planting trees, creating a real man-made forest of 550 hectares on one of the sandbars of the Brahmaputra River. Children, we all are aware of the Sustainable Development Goals, right? Yes? Sustainable forestry is a practice of managing forests to meet current needs and desire of society for forest resources, that is products, service, and values without compromising the availability of these for future generations. Keeping this in mind, he started by planting bamboos, after which he continued planting other species. The Molai forest, which is in Assam, created by him, now surrounded with an area of about 1,360 acres, or you can say 550 hectares of forest. The area can be compared to the size of 15 football stadiums together. Isn't it amazing? Yes, a huge round of applause for that. The land which was once barren had now turned into a luscious green oasis with several species of flora and fauna. This forest, which is of 550 hectares, had been named as Molai Forest after him, which has now become a home for more than 15 elephants, a number of Bengal tigers, 100 of deer and rabbits, many rhinos, monkeys, and birds, including a large number of vultures. There are several thousands of trees in Molai Forest that include Arjun, Ajar, Golmohar, and many more in an extensive area of over 300 acres with bamboo trees. He has shown the world how persistence and dedication can create a dense forest through afforestation. A huge round of applause for this eminent personality. Welcome to our school, sir. We are honored. Now, I would like to call Sandeep sir, Middle Section Coordinator, to felicitate Jayashree ma'am. To please come and felicitate, sir. Okay. So I would request Aparna ma'am, Vandana ma'am, Assistant Coordinator, Sandeep sir, please come on stage to please felicitate, sir. Sir, please come on stage. A huge round of applause, louder.
to please enlighten us with your points. नमस्कार। मैं जो काम करा है ये तो दूसरा काम नहीं करा। धर्म, राजनीति, अर्थनीति सबसे ऊपर प्रकृति। इसके लिए राजनीति, अर्थनीति, धर्म नीति आधार से प्रकृति के काम कर रहा है। मेरा जो फॉरेस्ट है बहुत हिस्ट्रिकल एरिया, इंडिया का अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और मानव का मेरा फॉरेस्ट में हुआ मोहगढ़ सिटी पर 1824 फरवरी में नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश कॉलोनी गया था। उधर ही मेरा जन्म है। बचपन में दिखाया ब्रिटिशों दिन के जहाज घाट ढाका होके कलकत्ता होके सामान कोकिलामुख बरगुप में उधर ही सामान लेके आया था। और अपार असम का पहले रेलवे का स्टेशन जोरहाट जेपीआर उधर ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। लेकिन ये जो हुआ था ये तो 1965 तक 70 तक यूरोसोनो के 10 किलोमीटर हमारे गांव मोहगढ़ सुटी और जहाज घाट रेलवे के लाइन ब्रह्मपुत्र में यूरोसोनो के चला गया। चलने के बाद मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट का पेशकार अनिल ठाकुर के घर में जाके उधर ही क्लास 3 तक उधर ही पढ़ा था। जो पढ़ा है 90 नंग बालीगांव प्राथमिक विद्यालय में एक साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेकिन वो बोटानिकल के है। हम लोग का उसका बेटा बेटी के बेंच में बैठा है तो बचपन से सिखाया पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुणागुण और पेड़ का नाम जानना पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। वह सुपारी साथ पाना में हमारे असम में खा लेता है, लेकिन एक दिन वो पाना सब हाथ में नहीं होता है, मेरा हाथ में जल्दी जल्दी होता है। इसके लिए एक दिन वो साइंटिस्ट ने आज तक 90 इयर्स हुआ वो जिंदे रहता है, मेरा फॉरेस्ट में जा रहा है। अभी वो बुलाया तो ये काम करो, एक दिन विश्ववासी के लिए प्रेरणा होगा। आपका हाथ बहुत सुंदर है। मैं पाना प्लांटेशन करने के लिए 25 पैसा देता है। वो दिन में 25% 1.5 kg बादाम मिलता है। बादाम के लूप पर में अप्रैल में जून तक प्लांटेशन करता है। गांव में लेके ऐसे ही करा है। करने के बाद एक दिन जो हमारे 10 किलोमीटर इरोशन हो गया, एक दिन जून महीना में आगे क्या है असम में 12 दिन ज़्यादा धूप होता है, वो दिन 23 दिन ज़्यादा होता है। 79 तक जब ओवरफ्लड हुआ, चाइना और अरुणाचल प्रदेश से आया था जबराबरा, जो हमारे 10 किलोमीटर में सेंट एरिया हो गया। वह जबराबरा रुक गया था। रुकने के बाद पानी सूखने के बाद उधर जब रुक गया तब आगे जून महीना में 12 दिन ज़्यादा धूप हुआ, वो दिन 23 दिन ज़्यादा होने जबरा जो आया था उसका अंदर में 27 स्नेक्स आया था। स्नेक्स आने के बाद तो बाली के उत्ता पर डाइट हो गया 27 स्नेक्स। तो मेरा प्यार लगे एक दिन तो हम लोग भी ऐसे ही मर जाएगा। वो दिन मेरा 14-15 ईयर्स है। तो नीचे 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल लुकाई डेयरी कमिटी है, सासा सासी के साथ गया था। वो लोग का पूछाया वो सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग बुलाया कि विश्व से सब उष्णाग्रस्त रूपो। मेरा मालूम नहीं है विश्व से उष्णाग्रस्त क्या है। वो लोग बुलाए बैम्बो प्लांटेशन करने साहस हुई और तो प्लांटेशन करके जाओ। तो वो लोग 50 बैम्बो का बीज 25 बैम्बो 7 मरने जमीन पर 50 मीठी के कलसी लेके फुटा करके 5 दिन के अंतर पानी दे के बैम्बो भी जल्दी जल्दी हुआ। जो बीज आया था वो भी फरा। पेड़ प्लांटेशन करते करते 30 इयर्स में बड़ा फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट होने के बाद शताधिक डियर आ गया। डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर का राइनो आ गया और एलिफेंट आ गया। एलिफेंट आने के टाइम पर मेरा ऊपर गांववासी ने बहुत गुस्सा था। तो फॉरेस्ट बनाने में ये एलिफेंट आ गया। एक दिन
सब लोग गांव में मीटिंग करके करा है कि पेड़ सब काटने से भी एलिफेंट नहीं आएगा। तब एक दिन आ गया। एक दिन आने के बाद मैं बुलाया, पहले मेरे को काटो, उसके बाद पेड़ काटो। मेरा पेड़ तो आप लोग का मकान को तोड़ नहीं दिया था, एलिफेंट ने तोड़। एलिफेंट के साथ आप लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर है, भारत का प्रधानमंत्री भी है, वो लोग का साथ बातचीत कर। मेरा बात सुन के चला गया। चलने के बाद पट्टकार को ऐसे ही धन्यवाद देता हूँ। एक दिन जो दिन पट्टकार 7 आ गया, आने के बाद वो दिन में सुसाइड की है पट्टकार, वो तो नहीं, तो मैं जाना कि वो पुसार आ गया। तो जो दिन आया था 9 का को टाइगर मार दिया, 3 राइनो है, 150 एलिफेंट है। इसके लिए आप फॉरेस्ट में मत जाइए, आप चला जाओ। पिछला दिन मकरकांति में एक आसामीज गामूसा, धूसा और 500 रुपया और एक सिलेंडर जाके बुलाए, तो आप बहुत अच्छी काम करा है, आपका साथ हम लोग है। ये आर्टिकल लिखने 2 साल लगाया। सदिया तक धुबरी अध्ययन करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुआ, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलिया कि ये हमारे रेवेन्यू का अंदर नहीं है, वो अकेले बनाया था फॉरेस्ट। उसके बारे में 2010 25 जनवरी में आर्टिकल निकालने के बाद DYTC 5 दूरदर्शन और टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल लिखने के बाद तब दिल्ली यूनिवर्सिटी धरती दिवस ने मेरे को इन्वाइट करके 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर का ऊपर, हर पक्षी का ऊपर रात 4-3 बजे पहले बार फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया टाइटल दिया था। देने के बाद मैं आसाम आया था। आसाम आने के बाद 3 दिन के बाद फिर बुलाया बॉम्बे चंद्र मुखर्जी हॉल में। APJ अब्दुल कलाम सर ने मेरे को मोड़ में हाथ दे के बुलाया, विश्व से सब अच्छी काम आप करा, इसके लिए आपको 60 kg डायमंड से 2.5 लाख रुपया सेट देता है, विश्ववासी के लिए कर जाओ। आपका सार्वजनिक स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मौत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा, ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा आप जाने पड़ेगा। 3 दिन के बाद जब तक बॉम्बे से गया था, जो जितनी भी अच्छी लगाया, वही दिन मेरा फॉरेस्ट में 2012 1 अगस्त में एक राइनो पोचा ने मार दिया था। डिपार्टमेंट को बोल के आया था, आप देखिए मैं बाहर आ गया, राइनो 9 महीना हुआ इधर ही था, तो वो लोग का ध्यान नहीं देता। तो मारने के बाद भी बुलाया को कहाँ यह राइनो है। तब मैं बुलाया कि मैं बॉम्बे से 3 बजे में पहुंच जाएगा जोरहाट, अब मेरा साथ चलिए। तब गाँववासी को बुलाया, कहाँ पर बंदूक का साउंड हुआ था, उत्तरादी से। तब गया था, यह था हॉर्न काट गया, काना काट गया, नॉक चटनी भी उससे काट के ले गया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान होता है ये राइनो है। तो उसके बारे में वही दिन में इन्वाइट करा है। फिर इवेंट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पेरिस, तब तो मेरा पासपोर्ट वीसा नहीं कैसे जाएगा, ये तो जाने वाला तो नहीं है। तब ईमेल में भेजा दिया, जीतू कलिता जो है उसके साथ में तो तब इंडिया गवर्नमेंट को इवेंट से बुलाया, तो वो तो उसको तो हम लोग का जरूरत है, इसके लिए उसका पासपोर्ट वीसा कॉम्प्लीट करके भेजा दो। तब जोरहाट कमिश्नर ने सब कर दिया था। करने के बाद तब बोला कि आपको पासपोर्ट वीसा कलकत्ता में मिलेगा। 2 दिन का आगे जाने 2 दिन बाद इंडिया बंद दिया था। तब 2 दिन का आगे आया था, जब तब पासपोर्ट वीसा मिला तो मेरा जितनी अच्छी लगा उतनी डर लगता है। कोई दिन फ्लाइट में नहीं गया था। तब फ्लाइट में जब बैठा है तब देखेगा वो तो जो फ्लाइट है 500 सीट है, तब सब तो फॉरेनर लोग है। तब बैठा है, वहाँ तो वाइन बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरा मन खुशी से मैं कलकत्ता का अरब का दहा तक 3 बोतल, अरब का दहा तक स्विट्जरलैंड जेनेवा तक 2 बोतल पी के फ्रांस पहुँच गया। तब जीतू कलिता गया था मेरा साथ। मैं बोल दिया, देखिए पेड़ ने मेरे को कपड़ा पिंधा, पंछी ने 7 समुद्र 13 नदी पार करके सूरज उठने देश से सूरज मारने देश में लेके आया था। दूसरा तो नहीं है। पेड़ का ऊपर, जानवर के ऊपर, पंछी के ऊपर कितनी ध्यान लेने पड़ेगा। पिछला दिन जब 195 देशों का साइंटिस्ट लोग घोषणा करा जे
धरती बचाएगा, पेड़ नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। साइंटिस्ट लोग घोषणा करा, सब विश्ववासी ने धरती को ध्वंस करने के बाद एक आदमी सृष्टि करने के लिए मैं को अवार्ड देने के लिए एक पौधा लगाने के लिए उधर इन्वाइट करके ले गया। सब पेड़ लगा दिया था, बैठा दिया था। तब विश्व से जितने भी धर्म का लोग है थोड़ा थोड़ा मिट्टी देकर उसका कोई अपन धर्म से पूजा करा है। तब इतनी ज्यादा बारिश आ गया। बारिश आने के बाद मेरा अंतर में बहुत अच्छा लगा, प्यार लगा कि विश्ववासी अवेयरनेस हुआ था। वही दिन फिर फ्रांस से इंडिया में आ गया। इंडिया के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गया था। 1972 स्वीडन का स्टॉकहोम 113 देशों ने घोषणा, वही दिन क्लाइमेट चेंज। इंडिया में 1973 तक बुक में है 1974 तक विश्व परिवेश दिवस पालन करा है 5 जून। वही दिन में देखा है एक ही गाता पर विश्व परिवेश दिवस पालन करा है, पेड़ एक भी नहीं। इंडिया का शिक्षा ऐसे ही है नहीं, बड़ा लोग पेड़ कटाया, सूता बच्चा लोग को पेड़ उखाड़ करके जान मारे। नहीं उखाड़ने से भी वही दिन चटनी क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या शिक्षा को अग्राधिकार दे, एनवायरमेंटल साइंस, परिवेश विज्ञान एलपी स्कूल में से देने पड़ा। जब तक एक लड़का एलपी स्कूल में एडमिशन देगा, एक पौधा लगेगा, वो प्रतिपालन करके 5 साल में बड़ा करने पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा। दूसरा साल और एक पेड़ प्लांटेशन करेगा, 5 साल वो विश्ववासी को दे। तब साल भर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड कितने बच्चों लोग तो एडमिशन देता है। 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना, 4 साल में 5 साल, 3 साल में ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रीन हो जाएगा। तो हम लोग तो लड़का बच्चों को नया धरती बचा सकेगा। वो लोग का पेड़ काटने नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पंछी बैठेगा मारने नहीं देगा, पेड़ के नीचे जानवर बैठेगा मारने नहीं देगा। आदिम युगों से जो सुरक्षा नहीं करेगा वो लोग करेगा। इसके लिए बच्चों लोग के ऊपर धरती बचाने का एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया के भी नहीं, ऑल ओवर गलती है। मेरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या है, बोटानिकल का प्रोफेसर आया था, साइंटिस्टों लोग थियोरिटिकल पेड़ का नाम जाना है लेकिन पेड़ सीना नहीं है। तब बच्चों लोग को गलती क्या बोलेगा, टीचर ही नहीं जाना था, बच्चों लोग तो गलती नहीं है। इसके लिए वो लोग को देखने से मेरा बहुत दुख लगेगा। वो रात खाना पीना करने मन नहीं लगता। हम लोग का गलती से वो लोग का जो करा है वो लोग मिलेगा। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के प्रेजेंटेशन करके हम लोग को धरती को बचा सकेगा। आप लोग आगे क्या है, आप लोग का आगे जन्म का दिन पर केक कटा है, क्या केक मत कटाओ, एक पौधा लगाओ और जितने भी दोस्त को इनवाइट करेगा वो लोग का एक पौधा लगा। तब जल्दी और वर्ल्ड ग्रीन हो जाएगा, तब हम लोग जिंदे रहेगा। आप लोग का ऊपर बहुत भरोसा है। इसके लिए तुम लोग को ये बोल सकता है कि आइए धरती बचाओ, जब तक धरती रहेगा तब तक हम लोग जिंदे रहेगा। धरती नहीं रहेगा तो कोई जिंदे नहीं रहेगा। तो इसके बारे फिर बोला इन्वाइट करा इवेंट लेवल कॉन्फ्रेंस पेरिस। तो इंडिया से इकोनॉमिकल लेक्चर मेरे को लेके गया था। मैं तो विश्व से 195 देशों का जितने भी है 12 मिनट भाषण देने के बुलाया। मैं बुलाया कि आप लोग इकोनॉमी के ऊपर अपने जो है 1 मिनट उत्साह बंद करो, कितने ऑक्सीजन का जरूरत है। तो कौन ऑक्सीजन देता है, पेड़ नहीं देता है। इसके लिए 20,000 पीपुल तो अपन जिंदे के लिए आज एक प्लांटेशन ऑल ओवर वर्ल्ड 780 करोड़ पीपुल एक पौधा लगा, तब धरती बचा सकेगा। नहीं तो धरती माँ का पूरा बुखार हुआ, जब तक संपूर्ण बुखार हो जाएगा तब हम लोग जिंदे नहीं रहेगा। ऐसे हुआ था। कोविड-19 ने इसके लिए विश्ववासी को समझा दिया था। विश्व में जाने भी नहीं जाना, देखने से भी नहीं देखा। इसके लिए कोविड-19 आ गया। वो उसके बारे में 2020 में क्वीन एलिजाबेथ के अवार्ड मेरे को दिया था। आने के बाद मेरा बुखार हुआ,
बुखार होने के बाद घर में घुमाने नहीं देता है, गांव में घुमाने नहीं देता है। तब मैं जोड़ा बांध के फॉरेस्ट में गया था। फॉरेस्ट में जाके जितने भी वो पेड़ पौधा के साथ औषध है, आयुर्वेदिक औषध, उसको अलग अलग नाम है, उसको बॉइल करके खा दिया, मेरा बुखार उखार सब ठीक हो गया। तब देख लिया था कि उधर 3 राइन हुआ है, 151 है। तब देखा कि लॉकडाउन के समय पर वो जानवर सबका मुक्त विश्राम भूमि हो गया। जो पेड़ है आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो गया और फ्रेश बढ़ गया, और उसके बाद पंछी ने मुक्त विश्राम भूमि होगा। लेक जो है आगे, तो लेक का पानी सफ़ेद हो गया। तो इसके लिए मैं जो दिन फॉरेस्ट का अंदर रहता वही दिन मैं मेक्सिको में लेके गया था। मेक्सिको जब गया था तो यूनेस्को बेनेनेसर को बोला, पुतुकुल के अंदर वो प्रोग्राम हुआ था मेक्सिको, वो राष्ट्रपति के साथ दलील में साइन करा। 3 साल वीसा है मेरा, 1 साल में 1 लाख, 3 महीना रह के 1 लाख स्टूडेंट के साथ प्लांटेशन करने पड़ेगा। अभी इंडिया से भी जो वीजा लेके वो जो प्लांटेशन कर रहा है 2021 में नहीं गया था, 2000 नवंबर दिसंबर में चला जाएगा। तो धरती एक है, जो देश भी इन्वाइट करके मेरे घर है, इसके लिए धरती बसा के रहने के लिए जो कराए ग्रीन करवाओ, तब हम लोग ये कर सकते हैं। तब उसके बारे में मेक्सिको यूनेस्को बेनेनेसर को बुलाया। मैं जो मेरा फॉरेस्ट से प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से बोला कि 7 days ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन से धरती बचा सकेगा और घूर के आएगा। आइए, तब लॉकडाउन के समय पर कलकत्ता के नीला आकाश देखा है, गंगा के पानी परिष्कार हो गया। तब जितने देश में क्या हुआ, तो ये लॉकडाउन होने चाहिए। तो स्कॉटलैंड में जो क्लाइमेट चेंज के बारे में हुआ था, एक लेटर भेज दिया। फिर आप लोग का सूरत में आके कि ये सोचा कि सूरत के आसपास जितनी खाली जमीनें पेड़ पौधा लगा के ग्रीन करो, तब हम लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इसके सूरत भारतीय जितनी भी है, हम बहुत प्यार लगता, बाहर में है, यूरोप यूनिवर्सिटी में मिला है। जब यूरोप अनुराधा मेरा इंडिया के भी हमारे बच्चे भी है, और क्या जो है ना, वो 2 दिन रखा है, हमें बातचीत हुआ था। तो कुछ बातचीत हुआ था, ये करने से भी क्या हुआ ना, ये तो गलती है, गलती नहीं होने से इसके लिए इंडिया को 16 पूरा स्टूडेंट मिला वो भाषण देने के बाद। तब मैं बोला उच्च शिक्षा लेने के आने में धन्यवाद देता, उच्च शिक्षा शेष करके इंडिया में आओ, कम पैसा में करो, देश डेवलप करो। और वहाँ से 2 years नौकरी करके इंजीनियर पास कर नौकरी करा। दार्जिलिंग बुद्धिस्ट स्टेट है, इतने प्लास्टिक यूज करा है, कांचनजंगा बबाइका में वो 40 फुट नीचे से प्लास्टिक है, सब पेड़ पौधा हिमालय से मर जाता है। तो वो दोनों इंजीनियर आके नीचे से प्लास्टिक निकाल के तो 40 फीट मीठी भरा के उसको 550 और प्लांटेशन करा है। तो ये भी इंडिया का भी है। आइए आप लोग जब तक बाहर जाओ, उच्च शिक्षा ज्ञान लेने जाओ, तो उच्च शिक्षा शेष करके इंडिया में आओ, कम पैसा करो, इंडिया को डेवलप करो। तो विश्व सब में देखा, विश्व से 30% साइंटिस्ट इंडिया, सब आउट ऑफ इंडिया, भालो भालो डॉक्टर, भालो भालो सब आउट ऑफ इंडिया। इंडिया के पैसा ने कहा है दूसरा देश डेवलप करा है मरने के टाइम में। ये शिक्षा में क्या जरूरत है? इसके लिए तो मोदी जो करा है, जो मोदी ये मेरे को बुलाया कि टाटा स्टील में ऑल ओवर वर्ल्ड ट्राइबल स्टील में तो इन्वाइट करा। तो आगे उसके आगे में 1 साल के आगे भारतीय समाज भाई कर्नल एयरपोर्ट का कर्नल के साथ बातचीत हुआ था। होने के बाद तो बुलाया इंदिरा गांधी दिन से, राजीव गांधी से, मनमोहन सिंह के दिन से बुलाया कि जब 500 रुपया 1000 रुपया नकस नहीं कर इंडिया डेवलप नहीं होगा। तब मैं बुलाया पुणे जाके कर्नल के साथ बनाया, वो डुप्लीकेट है, 3500 करोड़ पैसा डुप्लीकेट है। तो आज मोदी करेगा कि नहीं करेगा कोई पता नहीं है। तो मैं अंदर में रहता है
वही दिन मुझे 2 मिनट के लिए बातचीत करने के बजाय 2 घंटा कर दिया था। रात सारी घर में खत्म कर दिया 500 रुपया करने से। तब मेरे को पुछाया, वो टका लोग पुछाया, आप मुझे को क्या करेगा? 500 रुपये एक नकल। मुझे इंडिया का भगवान है, जो करा है अच्छी काम करा है, मैं आगे जाना है क्या क्या कर। तो अभी मुझे ऐसे ही अच्छा है, वो यूक्रेन में जो राष्ट्र का लड़ाई हुआ था, 20,000 स्टूडेंट मानव संपद गहने के इंडिया के भी नहीं लेके आया था। अभी कहाँ से लेकर चाइना, बांग्लादेश, ताइवान और पाकिस्तान सब स्टूडेंट को भारतीय पताका लेके आया था मानव संपद गहने के लिए। वो तो कितनी जरूरत है इंडिया के लिए। इंडिया में ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए करने वाला है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रधानमंत्री एक ही है, मोदी है, दूसरा तो नहीं है ना। वो तो इतने करने नहीं है। तो इसके लिए आइए इंडिया को डेवलप करने के लिए जो कोशिश करा है। लेकिन एक बात है, ये मोदी को मैं लेटर दिया था, जो इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट उस संरक्षण करके आप डेवलप करो और टॉप टू इंडिया बसा सके, नहीं तो नहीं ले सके। तो इंडिया का करप्शन है 2020 तक 50 विश्व से सब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तब क्लाइमेट चेंज तक नहीं होगा। इसके लिए जितने भी खाली जमीन था वो पेड़ पौधा लगा के ग्रीन करो। अभी वो दिन दिल्ली में बुलाया, भारतीय एनजीओ लोग को बुलाया, आप लोग का एनजीओ का पैसा बाहर से लेके आया था, आपका कार कितने में नहीं, मोटरसाइकिल कितने में नहीं, इंडिया के खाली जमीन गील करने से भी तो होगा। इसके लिए जो नहीं करेगा तो वो तो नकस कर देगा इंटरनेशनल में। अभी 2023 में, वही दिन 2015 में तो सब लोग सिग्नेचर 19 देशों ने 29 देशों को डॉलर देने पड़ेगा। वो लोग कम जनसंख्या में आगे प्रकृति को ध्वंस कराए, लेकिन 29 देश करा नहीं है। इसके लिए 2015 में डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर नहीं देता है। मैं गया था, इकोनॉमिकल लेक्चर गया था, सब लोग सिग्नेचर दिया था। तो उसका फंड है, वो फंड 2023 का वो शुरू करेगा। वो तो इंडिया में आएगा। तो जितने भी है आप लोग एनजीओ लोग मिलजुल के आप तो इंडिया को जल्दी जल्दी क्लीन करो। इंडिया वही विश्व में देखा, इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब मेरे को अवार्ड देने से भी नहीं बुलाया। तो एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया को बहुत ऊपर में छोड़ कर गया था। तब तो इसके बारे में इंडिया के लिए डर लगता है और क्या क्या है इंडिया में कोई पता नहीं है। वो लोग का बाहर देशों के इंडिया के आदर्शों में आए। और तो बच्चों लोग, आप लोग एक दिन इंडिया को गिन करके आप लोग सब लोग के ऑल ओवर वर्ल्ड को नेतृत्व देने पड़ेगा। ये इंडिया ही करेगा और दूसरा कोई देश नहीं है। जहाँ आप लोग का ऊपर बहुत भरोसा है। आइए हम लोग गिन करें और ये करने से भी अच्छा है। थैंक यू। Please be seated. सर, आपकी बातें सुनकर कुछ लाइन बोलने का मन कर रहा है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाते हैं, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सर, your love, care for nature, your initiative and the deep knowledge about forestry and your achievements have done wonders. Very good message we have received from sir, students, that we must protect the forest for our children, grandchildren and children yet to be born. We must protect the forest for those who can't speak for themselves, such as the birds, animals, fish and trees. So on behalf of GGGIS, I extend a hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. Jadhav, along with the members who spared their time from their busiest schedule. Sir, your thoughts have enlightened our minds and has shown us a new path. You have raised the benchmark for hard work and dedication in this society.
Thank you so much, sir, once again for your presence. Students, there is a plantation drive with the Forest Man of India, and so monitors and prefects are requested to stay back. And now I would request all of you to rise for national anthem. Students, please stand straight and be ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे। Come, you also. One by one. Just Wait. yeah, one by one everybody. When you come back as alumni, you know you have planted this tree. Your block. बच्चे लोग अलग अलग बने दूसरे बच्चों को चांस हाँ everybody just rotate over there and then give आगे bच्चे सब Sir, आप इस side आ जाइए. Okay, now you all have done it. Move. Let other children come. those who have done come back up later Those who have done, come. Okay, you can go now. Yes, come. Take little soil and put it there. Come. Or you were standing for. हाँ. बैनर को मैं Those who have not done, come this side, beta. This girl, come this side. हाँ, here, come this side. बच्चों, come side. खड़े रहिए बच्चे लोग डालते रहे सारी मिट्टी डालनी है. Now start doing it. Hold a bigger block. Use both your arms. Use all your arms. take by both hands even Yes. You have to finish this portion. Oh, you can set it there. Girls, volunteer yourself. Come. No, that side also. Boys, you can sit and arrange it there. Arrange the soil. Yes. You can sit there and arrange the soil. Yeah. Now we can have a photo. Kids, you all stand with sir. All of you. थोड़ा सा इधर भी आ जाइए Sandeep sir, आप आइए. Anna ma'am आइए. And all the guests who have come. आइए Please. कम आगे आइए Right hand, or your right hand. You can take face that side. That side. Beta, come this side. Camera is here. Okay, there is lot of space here. तो तो ये फोटो निकालने से तो डायरेक्टली मना करा क्यों मना करा देर को मत ध्यान दो कैमरे को मत ध्यान दो बिल्कुल नेचुरल हाँ
आइडिया। आप यहाँ से भी करते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। और वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होगा ना कि मैं आने देखो ऐसे मतलब तो एग्जाम में फेल हो जाए और तो सीराम स्कूल में दिल्ली वो साइंटिस्ट लोग जो बिल्कुल काटते हैं ना वो ये फर्स्ट ईयर में वो लोग को एक पता लगाने के लिए फ्री एडमिशन हो उसके बारे में क्या कोई कैमरा में ध्यान देता है उसको एग्जाम में फेल होता है आप लोग को भी नोटिस देगा। हाँ ऑल राइट सर एक सर डॉक्टर जादव सर इनके लिए एक सब्जेक्ट दो लाइन आपके लिए बोलना चाहते हैं। एक मिनट वो भी जाने से भी ऐसे ही करना पड़ेगा फिर तो ऊपर कैमरा का ऊपर मत दिया अब फोटोग्राफर भी कोई भी स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन करेगा कैमरा में देखो ऐसे मत करना तो बना कर दिया साइंटिस्ट ने इंडिया का साइंटिस्ट हो तो सीरम स्कूल में है इंडिया का वही में ये बताया हमारे आसाम का शिवगिरी सभानंद का अभी जो केंद्रीय मंत्री है वो जो प्लेनेशन गवर्नर भी प्लेनेशन वो कि मैं ध्यान देता हूँ तो मैं बुलाया था आप एग्जाम में फेल तो आप बुलाए ना हाँ मैं बुलाया अब तो बोलने के आपके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि अगर ईश्वर अपना पर्यावरण और वातावरण बदल सकते हैं तो वो भी तो सच है कि ईश्वर कोई भी व्यक्ति और या कोई भी चीज़ को भी बदल सकते हैं। तो आपने ऐसा काम किया है कि आपने तो पूरा वातावरण ही बदल दिया है और आपने पूरा पर्यावरण ही बदल दिया है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़े और आपको मिलकर बहुत ही खुशी